All right. What had we discussed in the previous class? So we were doing a journal on specific entries. Yes, we were discussing some specific and journal entries for some specific transactions, right? The first one we had discussed was for bad debts. What is the entry? Cash or bank account debit with the amount received. Then bad debts account debit with the amount that is irrecoverable to debtor. जो भी नेम दिया होगा वो नेम आ जाएगा, नेम नहीं दिया तो लिख देंगे टू डेटर विद द टोटल अमाउंट, isn't it? Next was bad debts recovered. What is the entry? Are we connected? Cash or bank account. Cash And to account bad or debts bank recovered. account debit? Yes, to bad debts recovered account. ठीक है. Third we had discussed was sundry expenses or miscellaneous expenses. The entry is Sundry expenses debit, and we'll credit cash account or bank account. right. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग. सपोज वी हैव पेड सैलरी, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? Salary account debit and cash account credit. Very good. Suppose now the question says salary is due, means it has not been paid. It has become due but not been paid. Now on accrual, our accrual concept says we should record expenses and incomes when they become due. So salary has become due. We have to record the salary expense. So we'll write salary account debit. यहाँ तक clear? Yes, sir. लेकिन टू कैश या टू बैंक हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी पे नहीं हुई है. तो फिर हम क्रेडिट किसको करेंगे? एक नया अकाउंट बनाएंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट. ठीक है, वो क्योंकि लायबिलिटी हो गई. एक एक्सपेंस ड्यू हो गया है बट वी हैव नॉट पेड, दैट मींस इट हैज बिकम आवर लायबिलिटी. सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट. सैलरी आउटस्टैंडिंग क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट होगा. क्लियर? Yes, sir. So in general terms we can say the entry will be expense account debit to expense outstanding account. Written? Yes, sir. Next is prepaid expense. Prepaid expense means when some expense has been paid in advance. Suppose we have paid 1 month salary in advance to the employees. Now, which accounts are involved? Salary account तो अभी हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि क्यों नहीं कर सकते बताओ? Because it is not yet due. अगर हमने एडवांस में पे कर दी है नेक्स्ट मंथ की सैलरी तो वो अभी ड्यू तो हुई नहीं. तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब ड्यू होगी तब रिकॉर्ड करेंगे. तो सैलरी अकाउंट तो नहीं आ सकता. ठीक है, पेमेंट जा रही है ये तो श्योर है, तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. अब डेबिट किसको करें? जो हमने एडवांस में सैलरी पे कर दी वो हमारा एसेट हो गया एक तरह से. कैसे हो गया एसेट? क्योंकि उसके बदले में सर्विसेज अभी हमें मिलनी है एम्प्लॉइज की. ठीक है, वो बेनिफिट अभी हमें मिलना है. डू यू रिमेंबर हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में डिस्कस किया था, 4 तरह के होते हैं. जब भी किसी एक्सपेंस या इनकम के साथ एडवांस या आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है.
all prepaid expenses, all expenses outstanding, all accrued incomes, all incomes received in advance. These are representative personal accounts. तो prepaid salary account को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि वो एसेट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन एम्प्लॉइज को जिन्हें हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है एंड वी हैव टू गेट सर्विसेज फ्रॉम देम. सो आवर एंट्री विल बिकम prepaid salary account debit to cash account. Clear? Yes, sir. So in general terms, the entry becomes prepaid expense account debit to cash or bank account. Written? Yes, sir. Next is accrued income. Accrued income मतलब जो इनकम हमारी ड्यू हो गई लेकिन हमें मिली नहीं है. Suppose this month's rent that we had to receive has become due, but we have not received yet. The tenant has not paid the rent to us yet. अगर वो रेंट हमें मिल जाता तब हम क्या एंट्री करते? So cash account debit and rent account credit. Yes, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट कर देते. अब कैश या बैंक को हम डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि मिला नहीं है, लेकिन रेंट रिसीव्ड रेंट को अभी भी हम क्रेडिट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी इनकम ड्यू हो गई है. सो एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिकॉर्ड इट. लेकिन डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम कर देंगे एक्रूड रेंट अकाउंट को, बिकॉज एक्रूड रेंट इज आवर एसेट. हमें वो पैसे मिलने हैं टेनेंट से, तो वो हमारा एसेट है. ठीक है, डेटर की तरह ही हो गया ना टेनेंट भी हमारा, कि जिससे पैसे हमने लेने हैं. सो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. क्लियर? Yes, sir. So in general terms, this entry becomes accrued income account debit to income account. Written? Yes, sir. Next is income received in advance. Suppose टेनेंट हमारा इतना अच्छा है कि उसने अगले 2 महीने का रेंट भी एडवांस में दे दिया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया कैश में या बैंक में, तो हम डेबिट किसको करेंगे? Cash or bank account. कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को, जिस फॉर्म में हमें मिला है. ठीक है. क्रेडिट अभी हम रेंट को नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्यू नहीं हुआ है, तो हम क्रेडिट करेंगे रेंट रिसीव्ड in advance account. This is a liability. How is it a liability? Because we have received something which was not due. Now in return we have to provide services for the amount we have received. अभी हमने उन्हें प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. Yes, हरसिमर. सर नहीं, वो मेरा म्यूट हो गया था. हाँ जी. सर नथिंग, वो म्यूट हो गया था गलती से, इसलिए अनम्यूट करवाने के लिए किया. ओके, ठीक है. तो जनरल टर्म्स में इसकी एंट्री क्या बन गई? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. अब हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था डेप्रिसिएशन. यस सर. व्हाट डज इट मीन? The Sir, permanent value of fixed asset over its useful life. Okay. Suppose you buy a, let us say, car today for rupees, let us say 6 lakh. ठीक है. If you want to sell this car after some time, can you sell it for 6 lakh? No sir. No. तो जनरली ज्यादा अमाउंट में बिकेगी, कम अमाउंट में बिकेगी? कम में. क्यों कम अमाउंट में बिकेगी? व्हाट इज द रीजन? सर क्योंकि इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस हुई है या फिर यूजेज हुई है. वेरी गुड. बिकॉज यूज होने से उसके पार्ट्स थोड़े घिस गए, तो अब उसकी वैल्यू कम हो गई. ठीक है. अगर हमने यूज नहीं भी की हो तो भी विद पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ी पुरानी हो गई, तो इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. दिस रिडक्शन इन वैल्यू of tangible fixed assets
इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और हमारे लिए डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, कि हम ये मान रहे हैं उतने अमाउंट का एसेट यूज हो गया। सपोज एक साल में 6 लाख की आपने एक कार खरीदी बिजनेस यूज के लिए, एंड ऑफ द ईयर वी आर एस्टिमेटिंग कि इसकी 60,000 वैल्यू कम हो गई है, तो हम ये मान के चल रहे हैं 6 लाख में से 60,000 की मशीन यूज हो गई है, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। Entry is depreciation account debit. Why debit? Because it is an expense for the business. To asset account. हमने अगर कार पे डेप्रिसिएशन लगाई है तो टू व्हीकल्स अकाउंट हो जाएगा। If we are charging depreciation on machinery तो टू मशीनरी अकाउंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जोन से भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रही है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, उसको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसेट की वैल्यू उतनी कम हो गई। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, 6 लाख का डेबिट बैलेंस था अभी जो हमने एग्जांपल लिया व्हीकल में, अब हम उसे 60,000 से क्रेडिट कर देंगे तो उस कार की वैल्यू अब 5,40,000 रुपीज बैलेंस शीट में रह जाएगी। और 60,000 क्रेडिट क्यों होगा? एसेट का कैसा वैल्यू एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है, रिडक्शन इन एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उतने अमाउंट का एसेट हम मान रहे हैं कि यूज हो गया, सो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट बाय दैट अमाउंट। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इससे बैलेंस शीट में हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है ये प्रॉफिट लॉस में ईयर एंड में हम इसे एक्सपेंस दिखा देंगे अपना। ठीक है, तो इतने अमाउंट से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। लिख ली ये एंट्री? नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक भी हमने पढ़ा था, क्या होता है स्टॉक? Sir, value of unsold goods. Very good. Value of goods lying unsold at any particular time. और जब हम कहते हैं closing stock means value of goods lying unsold at the end of accounting year. Accounting year मैंने आपको बताया था, mention नहीं हो तो हम क्या लेते हैं? 1 year. Sir, 31 March to 1st April financial year. 1st April to 31st March. ठीक है, अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है? 1st April 2020 से 31st March 2021। ठीक है, तो अब जब हम ईयर के एंड में क्या, वैसे तो हम स्टॉक अकाउंट नहीं मेंटेन करते, मैंने आपको बताया था स्टॉक की जितनी एंट्री होती हैं परचेज या सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के थ्रू होती हैं, लेकिन ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया तो उसको तो हमने अकाउंटिंग करनी है उसकी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने गुड्स परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹2,000। ठीक है, और हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल्स की, सेल्स करके हमारे पास इनकम आई लेट अस से 10,000। परचेज का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देता हूं, बहुत ही कम लग रहा है। 6,000 के गुड्स परचेज किए और सेल किए 10,000 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000। 4,000 का प्रॉफिट हुआ। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है, अब इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक इज 2,000। क्या प्रॉफिट पे कुछ फर्क पड़ा इससे? हाउ मच इज द प्रॉफिट? यस सर, कि हमारी जो परचेज है वो सिर्फ मतलब हमने 6,000 रुपीज का परचेज किया था, बट हमने सिर्फ 4,000 रुपीज का ही बेचा है। मतलब 4,000 रुपीज का सामान 10,000 में बिका है। एक्सीलेंट। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000।
6,000, पहले 4,000 प्रॉफिट था, अब 6,000 हो गया। लेट मी रिपीट व्हाट हरसिमर जस्ट सेड कि परचेज किए थे हमने 6,000 के, ठीक है, सेल किए हैं 10,000 में, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ऑन फर्स्ट लुक इट सीम्स 10 minus 6, 4,000 इज द प्रॉफिट इवन नाउ, बट इफ वी थिंक केयरफुली, अगर 2,000 के गुड्स बचे हुए हैं, इसका मतलब जो बिके हैं वो कितने के थे? 4,000 के। 6,000 के हमने खरीदे थे, जिसमें से 2,000 के तो अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब 4,000 रुपीज की कॉस्ट के गुड्स 10,000 में सेल हुए हैं, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 6,000 का। और ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जांपल है? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? सर वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल शायद। नो। मैचिंग। यस, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? वी शुड मैच द एक्सपेंसेस ऑफ एन ईयर विद द रेवेन्यूज ऑफ दैट ईयर। इस साल जो गुड्स बिके हैं उससे पूरे 6,000 की का एक्सपेंस मैच नहीं करता, क्योंकि 2,000 के तो अभी बिके ही नहीं। 10,000 की सेल के अगेंस्ट कितना एक्सपेंस मैच करता है? 4,000 जो गुड्स बिके हैं। तो जो 2,000 के गुड्स बच गए हैं उसे हमें इस साल का परचेज एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसे हम एक्सपेंस मानेंगे अब नेक्स्ट ईयर का। जब वो गुड्स बिकेंगे तब हम उसे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस मानेंगे। ये बात समझ में आई? सर एक बार रिपीट करना लास्ट लाइन। जो 2,000 रुपीज के गुड्स बच गए, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें उन्हें इस साल का एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए। हमने खरीदे इसी साल थे पूरे 6,000 के, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप किसी ईयर के एक्सपेंसेस को उस ईयर के रेवेन्यू से मैच करो। जो मैच होते हैं उन्हें एक्सपेंस शो करो, जो मैच नहीं होते उन्हें एक्सपेंस शो मत करो, ठीक है। सो 10,000 की सेल्स जो हुई है उससे ये 6,000 का एक्सपेंस मैच नहीं करता, क्योंकि इसमें से 2,000 के गुड्स तो अभी बचे हुए हैं, सेल हुए ही नहीं है। ये 10,000 का सेल्स रेवेन्यू जो आया है, ये कितनी कॉस्ट वाले गुड्स को बेचकर आया है? 4,000 के गुड्स को बेच के आया है। इसका मतलब हम इस साल का जो परचेज एक्सपेंस है वो सिर्फ 4,000 हमें दिखाना चाहिए, 6,000 नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम 6,000 दिखाएंगे तो क्या गड़बड़ होगी? इस साल का प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जब वो गुड्स बिकेंगे तब ऐसा लगेगा कि ये तो फ्री में आए थे, क्योंकि उनका एक्सपेंस तो हमने पिछले साल ही दिखा दिया। और वो 2,000 के गुड्स नेक्स्ट ईयर सपोज 5,000 में बिके तो पूरा 5,000 प्रॉफिट लगेगा, तो दोनों ईयर्स का प्रॉफिट गलत हो जाएगा। इस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगले साल का बढ़ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो स्टॉक बच गया दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज एक्सपेंस, सो वी शुड एक्सक्लूड दैट फ्रॉम द परचेज एक्सपेंस टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट, ठीक है। गेटिंग इट? यस सर। अब एक्सक्लूड कैसे करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे हम इस एंट्री के थ्रू। अब एंट्री देखो, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक हमारा एसेट है, हमने वैल्यू किया कितने अमाउंट का स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा एसेट है, ठीक है। टू परचेजेस, परचेजेस में डेबिट बैलेंस होता है, 6,000 का डेबिट बैलेंस है इस एग्जांपल में परचेज में। जब हम उसे 2,000 से क्रेडिट कर देंगे तो परचेज में बैलेंस कितना रह जाएगा? 4,000 का, ठीक है। 6,000 में से 2,000 हमने क्रेडिट कर दिया तो 4,000 का बैलेंस रह गया परचेज में। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो दिखेगा सेल्स 10,000, परचेज एक्सपेंस 4,000, ओके 6,000 का प्रॉफिट है। क्लियर? यस सर। नाउ सिंस वी डू नॉट कैरी द स्टॉक अकाउंट इन द बुक्स, तो हम क्या करेंगे? वेरी नेक्स्ट डे, सपोज 31 मार्च 2020 को हमने ये वाली एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक की, तो नेक्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बिगिन हो गया। अब इस स्टॉक को अगले साल के परचेज एक्सपेंस में इंक्लूड करना है, तो हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट।
इससे क्या होगा, स्टॉक अकाउंट 2000 जो ओपन हुआ था दैट विल गेट क्लोज्ड। क्लियर? सर पर स्टॉक वर्चुअली कम थोड़ी हो जाएगा, एसेट माइनस थोड़ी हो जाएगा। हम कम नहीं होगा, लेकिन उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कि इसमें परचेज एक्सपेंस में, क्योंकि स्टॉक को हम 4 ही चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं ना, परचेज या सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है वो, नेक्स्ट ईयर बिक जाएंगे वो गुड्स, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा। तो हमने ईयर के बिगिनिंग में ही उसे परचेज एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट देखें तो सिर्फ इतना हो रहा है कि 31 मार्च को हमने करंट ईयर की परचेज में से स्टॉक को माइनस कर दिया, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस हम नहीं लेना चाहते उसे, क्योंकि वो गुड्स अभी बिके ही नहीं है। और नेक्स्ट ईयर की परचेज में नेक्स्ट डे हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ऐड कर दिया, जिससे कि नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में वो इंक्लूड हो जाए। इज दिस क्लियर? बट सर स्टॉक क्रेडिट क्यों हुआ? स्टॉक क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया परचेज में ट्रांसफर करके। पिछली एंट्री में हमने परचेज से निकाल के स्टॉक में डाल दिया था, इसमें हमने स्टॉक से निकाल के वापस परचेज में डाल दिया नेक्स्ट ईयर वाले में, क्योंकि स्टॉक अकाउंट लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो अभी भी सेल होंगे या नहीं इस अकाउंटिंग ईयर में। यस एब्सोल्युटली। तो फिर उस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड में फिर क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा उसकी एंट्री फिर से हो जाएगी स्टॉक टू परचेजेस। ओके सर, ठीक है ना? वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली बिक जाएगा, नहीं भी बिका तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके क्लियर? सर, यस सर। सो ये दोनों एंट्रीज लिख ली, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की। यस सर। यस सर। Nandini wants to say something. Yes, Nandini, बोलो। Sir, in the stock account, what amount will be recorded? अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 2000, 2000, and in the purchases account it will be 4000. सेम 2000। परचेज में 6000 तो पहले से है ना, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2000 टू परचेजेस अकाउंट 2000। इससे क्या होगा, एक स्टॉक अकाउंट एसेट बन गया, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा स्टॉक 2000। परचेजेस तो जो टोटल परचेजेस के 6000 में से 2000 लेस हो जाएगा, तो परचेज का अमाउंट रह जाएगा 4000। तो जो टोटल 6000 होगा वो हम अलग एंट्री में शो करेंगे? नहीं, कहीं नहीं शो करेंगे सर वो तो 6000 स्टार्टिंग में होगा ना, जब हमने सारा परचेज किया होगा गुड्स। हाँ सर, Yes. मतलब स्टार्टिंग में शो करेंगे ना वो। हमने वो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट yes. कैश अकाउंट। पहले जब हमने वो गुड्स परचेज किए होंगे 6000 के, तब हमने एंट्री की होगी ना परचेज टू कैश 6000, वो तब शो हुआ होगा। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस अकाउंट में 4000 आएगा, 2000 आएगा। 2000 जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, उतना ही। ओके सर, ठीक है? थैंक यू। Any other doubt, anyone up to here? Okay. Next is interest on loan. Suppose हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपीस का, ठीक है? तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट एंड लोन बैंक अकाउंट क्रेडिट। जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक वो अमाउंट कहाँ पे देगा? हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगा, जो हमारा अकाउंट है बैंक में, ठीक है? सो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख। तो हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 5 लाख रुपीस। क्लियर? यस सर। यस सर। सपोज हमने ईयर के बिगिनिंग में ये लोन लिया, अब हमें ईयर के एंड पे लेट अस से उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना है। हमने पे कर दिया, 10% इंटरेस्ट पे कर दिया।
तो हमारी एंट्री क्या होगी? सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा और बैंक में से घटेगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं दैट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और बैंक से हमने पेमेंट कर दी तो टू बैंक अकाउंट, तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। द एग्जांपल दैट वी हैव टेकन, व्हाट विल बी द अमाउंट? 50,000। 50,000, वेरी गुड। 10% ऑफ 5 लाख। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट डालता हूं इस क्वेश्चन में। सपोज ये लोन हमने लिया था 1 अक्टूबर को, कोई फर्क पड़ेगा उससे इंटरेस्ट की एंट्री में? सर लोन कब चार्ज हो रहा है? लोन हमने लिया 1 अक्टूबर को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे कर रहे हैं 31 मार्च को। तो वो टाइम मंथ्स रिड्यूस हो गए तो 10% वेरी में गुड। चेंज आएगा। तो 10% 50,000 तो पूरे साल का था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स हुए, यानी आधा साल। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25,000। वेरी गुड, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और गुगली फेंकता हूं मैं। इस ट्रांजेक्शन में अगर मैं आपको कहूं इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, तब क्या एंट्री करोगे? तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। वेरी गुड, तो एंट्री बताओ क्या होगी? सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एंड टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इंटरेस्ट, अब ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट ऑन लोन वाली एंट्रीज कंबाइन हो जाएंगी एक तरह से इसमें, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख लिया इंटरेस्ट ऑन। सर एक वो वाला बताना जो आपने, कौन सा? सर अक्टूबर से जो मार्च का 6 मंथ्स का था, अगर हम 6 मंथ्स तक इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट से बढ़ नहीं जाएगा? मतलब समझा नहीं मैं, कौन सी डिफॉल्ट बढ़ जाएगी? सर मतलब हमने अगर अक्टूबर में लोन लिया तो जब लोन लेते हैं तभी इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब उसी मंथ से। हाँ, हमने एग्जांपल ये लिया था इंटरेस्ट पे होना है 31 मार्च को, ठीक है। मंथली बेसिस पे पेमेंट वाला नहीं लिया था हमने एग्जांपल। तो सर उसमें तो फिर पूरे साल, मतलब जितना टोटल इंटरेस्ट पे होना होगा उस लोन के अमाउंट पे पूरा ही तो होगा। पूरा क्यों उसमें होगा? कम क्यों हो रहा है? मैंने आपको कहा इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है 10% पर एनम। 10% पर एनम मींस पर ईयर। अगर पर ईयर का 10% है तो 6 मंथ का 5% हो जाएगा, या 10% निकाल लो पहले और उसे हाफ कर दो। ओके सर। गॉट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर ने जो कैपिटल, हाँ जी बोलो। नो सर, आपको नहीं बोल रही। ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में, कई बार ओनर को भी इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पे, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ही है। बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट थिंग, अगर पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा या टू कैश अकाउंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ओनर का अकाउंट बिजनेस में है, कैपिटल अकाउंट है, तो ओनर को जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाता, उसके कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग आपको ध्यान से पढ़नी है। अगर क्वेश्चन कहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, तब एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे सिर्फ प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या क्वेश्चन कहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ,
तो हम उसे कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, पेमेंट नहीं शो करेंगे, क्योंकि हम एज्यूम करेंगे उसकी कैपिटल में एडजस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए क्योंकि वो एक्सपेंस है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए कि कैपिटल का वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इससे उसकी कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब अब वो ड्राइंग्स करना चाहे तो ज्यादा ड्राइंग्स कर सकता है, ओनर का ज्यादा अमाउंट बिजनेस में लगा हुआ है। यस प्रीशिता, यू वांटेड टू से समथिंग? वो सर वो गलती से मैं म्यूट हो गई थी। ओके, ये क्लियर हुई एंट्री? सर Now let me ask a question. Is the owner receiver or giver of this interest? रिसीवर। और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो फिर यहाँ पे हम कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत एंट्री हो गई है ना। सर क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से कैपिटल प्लस होता है, प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। लेकिन हम कॉन्सेप्ट कोई भी लगाएं, एंट्री तो दोनों से सेम आनी चाहिए ना। यस सर। क्या हमने ये अमाउंट ओनर को एक्चुअली पे कर दिया है? नो सर। नो। इसका मतलब जो अमाउंट हमने ओनर को पे करना था वो अमाउंट अभी बिजनेस में ही रखा है। यस और नो? समझ नहीं आ रहा। तो अगर अब हम ध्यान से सोचें तो ओनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू हुआ वो उसने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब अगर वो कैश या बैंक के थ्रू लेके नहीं गया तो सर तो कैपिटल इंक्रीज हो गया इसलिए हमने उसको इसलिए क्रेडिट। ओनर, हाँ, तो इसलिए अगर हम ध्यान से सोचें तो ओनर रिसीवर नहीं है, गिवर है। क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलना था वो लेके नहीं गया कैश में या बैंक के थ्रू, वो अमाउंट उसने बिजनेस में ही लगा रहने दिया। इसका मतलब उसकी तरफ से एडिशनल कैपिटल आ गई, तो वो गिवर है एक्चुअली। सोचने में लगता है कि रिसीवर है, लेकिन एक्चुअली वो गिवर है। बाय नॉट टेकिंग द अमाउंट इन कैश, he is providing that amount to the business. That is why owner is giver and that is why capital account credit. Clear? सर इसको हम वैसे भी ले सकते हैं कि ये लाइबिलिटी भी तो बढ़ रही है, मतलब जो कैपिटल है उसमें लाइबिलिटी भी बढ़ रही है ना बिजनेस की, अगर अमाउंट बढ़ गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल भी ऐसा मानते हैं हम कि कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी ही है बिजनेस की, कि अगर कभी बिजनेस बंद होगा तो ये अमाउंट कैपिटल वाला जो है ओनर ले जाएगा। तो ये ओनर की तरफ लायबिलिटी है बिजनेस की, कैपिटल वाला अमाउंट। ठीक है, हम इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी टर्म्स यूज करते हैं कई बार। कैपिटल इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, अदर लायबिलिटीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन जनरली जब हम लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रेफर कर रहे होते हैं, कैपिटल को नहीं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओपोजिट, कि अगर ओनर ने कुछ ड्राइंग्स की हैं तो उस पर बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो वो इनकम हो गई। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही जनरली ये भी कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। सर अब इस केस में ओनर रिसीव कर रहा है ना? कर रहा है, यू टेल मी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस ओनर से करेगा। बिजनेस ओनर से चार्ज कर रहा है, यानी ओनर से बिजनेस को पैसे मिलने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के। अगर एंड आपको ट्रांजैक्शन में दिया और रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, तब तो हम कैश को या बैंक को डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर कैश या बैंक नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट हम कैपिटल में डेबिट करेंगे। क्यों? क्या ओनर रिसीवर है या गिवर है? सर रिसीवर है ना इस केस में तो गिवर है। हाँ, फिर वही कंफ्यूजन है इसमें जो पिछले वाले में थी। ठीक है, तो थोड़ा सा, अब आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को सिंपली जैसे लग रही हैं
उतने में ही नहीं, थोड़ा डीप में सोचना शुरू करो। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर ने बिजनेस को देना था, लेकिन दिया नहीं कैश या बैंक में, कैपिटल में से हमने एडजस्ट कर लिया। कैपिटल में से एडजस्ट कर लिया मतलब हमने उसकी कैपिटल रिड्यूस कर दी। हमने ये माना कि बिजनेस का पैसा ओनर के पास रखा हुआ है, अगर उसने दिया नहीं इसका मतलब बिजनेस के फंड्स उसके पास रखे हुए हैं ना। 100 रुपए उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, नहीं दिया, इसका मतलब बिजनेस के 100 रुपए ओनर के पास रखे हैं, है ना। तो रिसीवर हो गया वो, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दूसरा लॉजिक कैपिटल अकाउंट डेबिट का कि हमने उसकी कैपिटल में से रिड्यूस कर लिया वो अमाउंट, कि अब जब वो पैसे लेके जाएगा कभी कैपिटल में से ड्राइंग्स करेगा तो इतने अमाउंट की इससे कम कर पाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल का अमाउंट रिड्यूस हो गया। ठीक है, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्रेडिट होती है, और जब भी कैपिटल रिड्यूस होती है तो वो डेबिट होती है। क्लियर? Yes. एनी डाउट एनीवन? No, sir. अब ये इलस्ट्रेशन 2 का बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या नोट्स में से ये क्वेश्चन नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है? Okay, sir. सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे अगर 3 पेज पे जर्नल आता है तो हमने फर्स्ट पेज का टोटल जो सीएफ था वो नेक्स्ट पेज पे कर दिया, और Yes. सर फिर सेकंड पेज में हम पिछले वाले पेज का टोटल जो ऐड करेंगे फिर उसको थर्ड पेज पे लेके जाएंगे। यस यस यस, और थर्ड पेज पे फिर ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ओके सर। लिखेंगे टोटली